Hello students, good morning. Now welcome in our English online classes. Students, today we shall discuss our first chapter. We shall revise it, and the title of this chapter is The Three Questions, as you are watching on the screen. Now, this chapter has been written by Leo Tolstoy, and the title is The Three Questions. Let's start the chapter. Once there was a king, you know that एक बार एक राजा था. He wanted to know the answer to three questions which were puzzling him. वो 3 क्वेश्चन का जवाब जानना चाहता था जो क्वेश्चन उसको पजल कर रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे. He thought that he would be successful in that mission if he would be able to know the answer of those questions. उसने सोचा कि यदि वो इन क्वेश्चन का जवाब जान गया तो वो कभी भी किसी चीज़ में असफल नहीं होगा. His 3 questions were, उसके 3 क्वेश्चन थे. फर्स्ट है, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम. मीन्स what is the right time to do any right thing, right action, right job. यानी सही काम करने का क्या सही वक्त होता है. नेक्स्ट, who are the people I need the most. सेकंड क्वेश्चन उसके दिमाग में था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है. एंड टू whom आई शुड इग्नोर, और किसको मैं इग्नोर करूं, अनदेखा करूं. एंड थर्ड क्वेश्चन, दैट वाज द मोस्ट important question according to him. How do I know which is the most important thing to do. मैं कैसे जानूं कि ये काम मेरे लिए सबसे ज़रूरी है. The king said that I would give a great reward to that person who would be able to give the right आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. उसने कहा कि मैं उचित इनाम दूंगा. इस बात की घोषणा की जाए, मंत्रियों को उसने कहा कि ये घोषणा की जाए कि जो मेरे क्वेश्चन का, इन तीनों क्वेश्चन का जवाब सही देगा, मैं उसको उचित मात्रा में इनाम दूंगा. The most learned man came in the kingdom to give the answer of king's question. Learned man means विद्वान व्यक्ति. बहुत ही विद्वान व्यक्ति राजधानी के अंदर आए, राजा के सामने पेश हुए और उन्होंने अपना अपना जवाब दिया तीनों क्वेश्चन के बारे में. Each one had different answer to the किंग्स क्वेश्चन. राजा का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका सब लोगों ने, सभी विद्वानों ने अलग अलग जवाब दिया. वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, फॉर एवरी एक्शन वी शुड ड्रा अप अ प्लान इन एडवांस. यानी एक विद्वान ने कहा कि हर काम के लिए
हमें प्लानिंग की ज़रूरत होगी. वी शैल हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी फॉर एवरी गुड एक्शन. And he also added that a table of days, months and years should be prepared. उसने कहा कि एक टेबल बनाई जाए एंड द किंग मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्लान. और राजा जो है दिन, महीने और साल की जो टेबल बनेगी उसके अनुसार स्ट्रिक्टली वैसे काम करे, प्लानिंग के अनुसार. मीन्स one of the person said that for knowing the right time for doing the good action, a calendar should be prepared and the king should work according to that calendar. He said that only with the help of that timetable everything can be done at proper time. उसने कहा कि इस टाइम टेबल के अनुसार हर चीज़ जो है वो समय पर की जा सकती है. Another scholar said, scholar means विद्वान. दूसरे स्कॉलर ने कहा, दूसरे विद्वान ने कहा, it is impossible to decide the right time for every action. दूसरा जो विद्वान है वो कहने लगा कि ये बहुत ही असंभव बात है ये फैसला करना कि हर काम के लिए कौन सा समय उचित है, कौन सा नहीं है. If you avoid getting absorbed in idle pastime and attend to all that is going on, you can manage the most important task. यानी दूसरे विद्वान ने कहा कि यदि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और जो काम आपने हाथ में लिया है उसको करते जाएं तो यू कैन मैनेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क. और इस तरह से आप जो है बहुत ही ज़रूरी काम को करने में कामयाब हो जाएंगे, उसका प्रबंध आप कर लेंगे. Now the third scholar said, however attentive the king might be to what is going on, it is impossible for one man to decide correctly. Now the third scholar said that for doing any work, it is impossible for the king to perform that work, to do that work by himself instead of taking any help from others. So, third scholar said that the king should take help of other wise men for performing any action, for performing any good action. कोई अच्छा काम करने के लिए राजा जो है वाइज मैन की एक काउंसिल बनाए, एक सभा बनाए और उस सभा के जो निर्णय है उसके अनुसार काम करे. तो तीसरे ने कहा कि राजा जो है ये ग्रीन कलर का जो रोब डाले हुए है, इस स्कॉलर ने कहा कि राजा वाइज पीपल की एक काउंसिल बनाए एंड वट एवर द डिसीजन टेकन बाय दैट काउंसिल ऑफ वाइज पीपल, द किंग शुड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन ऑफ द काउंसिल. यानी राजा उस क्या नाम है वाइज मैन की, बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल बनाए, एक सभा बनाए और राजा उसी सभा के डिसीजन के अनुसार काम करे. Some scholar contradicted this and said, यानी कुछ स्कॉलर ने आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ दिए. कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स विरोधाभासी है, यानी एक दूसरे के उन्होंने बात को खारिज किया, अपनी बात को ऊपर रखा. तो इस तरह से कई स्कॉलर के व्यूज़ कॉन्ट्राडिक्टरी आए, आपस में विरोध पैदा करने वाले आए.
One of the person said, something might demand immediate action. यानी ये जो ओल्ड स्कॉलर है, इसने कहा कि कुछ काम तो ऐसे हैं जिनके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए. इमीडिएट एक्शन मीन तुरंत प्रभाव से काम शुरू कर देना चाहिए. Of course, for this we need to know what is going to happen in the future. और इसके लिए हमें ज़रूरत है ये जानने की कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है. यानी इस ओल्ड स्कॉलर ने, बूढ़े विद्वान ने कहा कि हमें इस बात का पता लगना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा. Only magician can tell the king what is going to happen in the future. And in this way, that old scholar said that only magician could tell what was going to happen in the future. इस बूढ़े विद्वान ने कहा कि ऐसी बात केवल एक जादूगर ही बता सकता है कि भविष्य में क्या होने जा रहा है. Therefore, one must consult them. इसलिए इस ओल्ड स्कॉलर ने कहा कि वन मस्ट कंसल्ट दैम का मतलब वन मीन्स द किंग मस्ट कंसल्ट दैम मीन मैजिशियन. तो इस ओल्ड स्कॉलर ने कहा कि राजा जो है सही काम को सही समय पर करने के लिए मैजिशियन जादूगर की जो है जादूगर से कंसल्ट करे, उससे पूछे कि सही समय पर सही काम क्या करना चाहिए. Equally various were the answer to the second question. जो सेकंड क्वेश्चन था उसके भी कई क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के भी कई जवाब राजा के सामने आए. द किंग नीड्स हिज काउंसलर द मोस्ट, सम सेड. यानी सेकंड क्वेश्चन क्या था, हु आर द इम्पोर्टेंट पीपल फॉर द किंग. यानी राजा के लिए ज़रूरी व्यक्ति कौन हैं. तो किसी ने कहा कि राजा को ज़रूरत है अपने काउंसलर की सबसे ज़्यादा, किसी ने डॉक्टर की कहा, किसी ने फार्मर की कहा, किसी ने सोल्जर की कहा. सम सेड डॉक्टर, सम सेड प्रीस्ट. किसी ने डॉक्टर की कहा कि डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है राजा को. किसी ने प्रीस्ट पुजारियों की कहा कि राजा को पुजारियों की ज़्यादा ज़रूरत है. कुछों ने कहा सैनिकों की ज़्यादा ज़रूरत है. द आंसर टू द क्वेश्चन वर इवन मोर कन्फ्यूजिंग. और इस क्वेश्चन के जो भी आंसर आए सब आंसर डिफरेंट थे एक दूसरे से और ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करने वाले थे. The resulting confusion led the king to meet a hermit. अब ये जो कन्फ्यूज़न बढ़ता गया राजा के सामने, राजा के दिमाग में, उस कन्फ्यूज़न बढ़ते हुए कन्फ्यूज़न ने राजा को प्रभावित किया. क्या करने के लिए? टू मीट अ हर्मिट. हर्मिट मीन्स साधु. यू आर वॉचिंग हेयर अ वर्ड हर्मिट, दैट मीन्स सेंट, साधु. तो राजा ने फैसला किया कि वो एक सेंट से, साधु से मिलेगा, क्योंकि उसकी जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि फैली हुई थी. हु वाज वाइडली नोन. वाइडली मीन्स बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में वो प्रसिद्ध था. वाइज हर्मिट. द हर्मिट लिव्ड इन द वुड्स. वुड्स मीन्स फॉरेस्ट. हर्मिट जो है वो साधु महात्मा जंगल में रहता था. एंड नेवर मेट एनी वन बट कॉमन पीपल. और ये आप देख रहे हैं, अभी आपने देखा लास्ट पिक्चर में, जो हर्मिट था वो केवल कॉमन पीपल, साधारण लोगों से मिलता था. यानी इट डिड नॉट मीट
with the VIPs. VIPs मीन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन थे, व्यक्ति थे, जिसमें मंत्री, राजा, वजीर, उनसे वो नहीं मिलता था, केवल जो है साधारण लोगों से, गरीब लोगों से मिलता था। The king disguised himself as a common man. Here is new term for you, disguise. Disguise means भेष बदलना। राजा ने अपने आप को एक कॉमन मैन, साधारण व्यक्ति का भेष बदला। He dismounted from the horse when he was at a little distance from the cottage of the hermit. वो घोड़े से उतर गया जब हर्मिट की कॉटेज के पास, झोपड़ी के पास जैसे ही वो पहुंचने वाला था, तो वो घोड़े से उतर गया और उसने अपने जो राजा के वस्त्र होते हैं, he also put off those clothes and he put on the clothes of simple person. और उसने सभी कपड़े, अपना जो ताज था, क्राउन था, वो उतार दिया और राजा के जो कपड़े थे वो उतारे और साधारण व्यक्ति की वेशभूषा में वो पहुंचा हर्मिट के पास। Now you are watching here on the screen, the king is going to meet the hermit on the back of the horse. घोड़े की पीठ पर बैठा राजा किस तरह से बढ़ रहा है हर्मिट की कॉटेज की तरफ, हर्मिट की झोपड़ी की तरफ। When the king reached the woods, the hermit was digging the ground for planting herbs. And when the king reached to the hermit's cell, राजा जब उस साधु के झोपड़ी के पास पहुंचा, तो साधु जो है वो ज़मीन खोद रहा था, क्या करने के लिए? हर्ब्स। हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियाँ या पौधे उगाने के लिए वो ज़मीन में अपनी स्पेड मीन्स कसी के साथ, अपने फावड़े के साथ ज़मीन को खोद रहा था। Seeing the king, he greeted him. यानी उस व्यक्ति को देखकर, जो वास्तव में राजा था लेकिन अब एक कॉमन मैन बना हुआ था, उसको देखकर उसने ग्रीट किया, अभिवादन किया। एंड each time he started, he kept his digging on. और हर बार जो है वो अपनी कसी के साथ, अपनी फावड़े के साथ ज़मीन को खोदता रहा। एंड टर्न अ लिटल सोयल। और हर बार जैसे ही कसी को, अपने फावड़े को गड़ाकर, जैसे वो मिट्टी को जो है निकालता था खोदकर, तो थोड़ी सी मिट्टी वो पलट पाता था। एंड ही ब्रीथ हैविली। और वो बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहा था। यानी ड्यू टू ओल्ड एज, दैट हर्मिट was feeling uncomfortable in taking his breathing properly. अपनी सांस लेने में वो गैर आरामदायक समझ रहा था, हर बार कसी को गड़ाया जा रहा था। and he was feeling himself uncomfortable. The king waited but the hermit continued to work. राजा ने इंतजार किया लेकिन जो साधु था, साधु महात्मा, वो अपने काम पर लगा रहा। The king decided that he would ask the question anyway. I have come to you, wise hermit. Wise hermit, मैं आपके पास आया हूँ to ask you answer of 3 question. कहता है मैं आपके पास 3 क्वेश्चन का जवाब जानने आया हूँ। My questions are, मेरे क्वेश्चन ये हैं। अब कौन से क्वेश्चन हैं वो देखिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। कहता है कि मैं सही चीज़, सही काम सही समय पर कैसे जानूं कि कब करना है,
कब नहीं करना। सेकंड, हु आर द इम्पोर्टेंट पीपल आई नीड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग मेरे लिए कौन हैं जिनकी मुझे ज़्यादा परवाह करनी चाहिए। नेक्स्ट, हाउ डू आई नो विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और मैं कैसे पता लगाऊं कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है करने का। द हर्मिट कंटिन्यूड डिगिंग, हर्मिट जो है वो डिगिंग करता रहा विदाउट गिविंग आंसर टू द किंग क्वेश्चन, राजा के जवाब दिए बगैर। द किंग सेड यू लुक टायर्ड, कैन आई हेल्प यू, राजा ने कहा आप जो है थके हुए महसूस होते हैं, दिखाई देते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। एंड टुक द स्पेड फ्रॉम द हर्मिट, और हर्मिट से वो फावड़ा या कसी कह लीजिए वो ले ली राजा ने। एंड स्टार्टेड डिगिंग, और क्या नाम है ज़मीन को खोदना शुरू किया। आफ्टर ही हैड डग 2 बेड्स, जैसे उसने 2 क्यारियाँ खोद दी राजा ने। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चन, राजा ने अपने क्वेश्चन दोबारा से रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर, उस साधु महात्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। द किंग वेंट ऑन डिगिंग, राजा जो है वो खोदता रहा अपनी कसी के साथ। द सन was suddenly, the sun started to set suddenly, and when the sun was setting at the same time, the king heard the loud cry of a person, and that person was bleeding from a large wound in the stomach, and that person was a bearded man who came running from the फॉरेस्ट, वो व्यक्ति जो ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था और दौड़ता आ रहा था, वो क्या नाम है जंगल की तरफ से आ रहा था, और उसके पेट में बड़ा घाव था। He fell fainting on the ground, fainting means यहाँ पर एक नई टर्म आपके लिए, fainting का मतलब है मूर्छित होना या बेहोश होना कह लीजिए, चक्कर आना, और वो जो है ज़मीन पर मूर्छित होकर बेहोश होकर गिर पड़ा। कौन गिर पड़ा? द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति जो घायल किया था राजा के आदमियों ने, क्योंकि दैट बियर्डेड मैन, ये दाढ़ी वाला व्यक्ति, डिड नॉट tell about his identity to the king's bodyguard who were there in protection of the king, जो राजा के बॉडीगार्ड थे, राजा की रखवाली के लिए, राजा के सैनिक, उसके अंगरक्षक, उन्होंने इस बियर्डेड मैन को घायल किया क्योंकि इसने अपना सही एड्रेस उन सैनिकों को नहीं बताया। तो उन्होंने इस व्यक्ति को शक के आधार पर घायल किया। Now, when that person reached to the king and the hermit, they took that person inside the hut. वो उसको झोपड़ी के अंदर ले गए। जैसे वो व्यक्ति राजा और साधु के पास पहुंचा। एंड द किंग क्लीन्ड द वुंड रिपीटली, और राजा ने बार बार उस बियर्डेड मैन के, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के जो है घाव साफ किया बार बार। एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, और इस घाव को अपने रुमाल से ढक दिया। और हर्मिट के टावल से। द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर अ फ्यू आवर, कुछ समय बाद खून बंद हो गया बहने से। बट द किंग कंटिन्यू टू टेक केयर ऑफ द वाउंडेड मैन ऑल नाइट, यानी खून बहना बंद हो गया, लेकिन राजा जो है
पूरी रात उस व्यक्ति की देखभाल करता रहा। इन द मॉर्निंग when the man woke up, he stared at the king for a few seconds। और सुबह जब वो व्यक्ति नींद से उसकी आंखें खुली तो उसने कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए राजा की तरफ देखा। He was overcome with shame। वो शर्म से उसकी नज़रें झुकी हुई थी राजा के सामने। When he realized it was the king who had saved his life। जब उस घायल व्यक्ति ने देखा कि ये राजा ही था जिसने उसके जीवन को बचाया। Forgive me नई टर्म है आपके लिए। forgive का मतलब माफ़ करना, टू एक्सक्यूज। कहता मुझे माफ़ करो। क्राइड द मैन, वो वाउंडेड मैन, घायल व्यक्ति या बेडेड मैन चिल्लाया कि मेरे को माफ़ करो। When the king looked at him, राजा ने जब उसकी तरफ देखा तो कहा कि मुझे माफ़ कर दो। I have nothing to forgive you for। अब राजा कहता है मैं किस बात की आपको माफ़ी दूँ। Who are you? said the king। राजा ने कहा आप कौन हैं? तो वो कहता है I am your enemy from the neighboring kingdom। कहता है मैं आपका दुश्मन हूँ साथ लगते हुई किंगडम से, राजधानी से। Who had sworn to kill you। कहता है मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने कसम खाई थी आपको मारने की। यानी राजा को वो बताता है कि मैंने ये कसम खाई थी कि मैं आपको मारूंगा। बिकॉज यू हैड किल्ड माई ब्रदर इन अ बैटल। क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था युद्ध में। When I heard that you were coming to meet the hermit। जब मैंने सुना कि आप साधु से मिलने आ रहे हैं। Your man however caught me and asked me, how can I thank you for saving my life। और कहता है जब आपके आदमियों ने मेरे को रोका and they asked me about my identity card, then I didn't show my identity card to them and because of that reason they wounded me। और कहता है कि आपके राजा को वो कहता है आपके आदमियों ने, आपके अंगरक्षकों ने, आपके बॉडीगार्ड्स ने मेरे को रोका और मेरी जो है आइडेंटिटी कार्ड या मेरी पहचान जानने की कोशिश की और मैंने उनको अपनी पहचान के बारे में नहीं बताया जिसके कारण उन्होंने मेरे को घायल कर दिया। हाउ कैन आई थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। और कहता है इस घाव से आपने मेरे को छुटकारा दिलाया, नहीं तो मैं मर जाता। और कहता है कि अब मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं मेरी ज़िंदगी को बचाने के लिए। इफ़ यू हैडंट ड्रेस्ड माई वुंड। यहाँ पर फिर नई टर्म है ड्रेस्ड मीन्स बैंडेज करना, पट्टी बांधना। कहता है यदि आपने मेरे घाव के ऊपर पट्टी ना बांधी होती तो मैं कब का जो है स्वर्ग सिधार गया होता।